Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हम the 3B चैप्टर, जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, विच इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको थोड़े और आगे लेकर जाएगी. वेरी क्विकली मैं आपको पहले ये याद दिला देता हूँ कि पिछले एपिसोड्स में, अगर आप ऐसे सोचना चाहो, हमने क्या क्या कवर अप किया है. वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी. लास्ट लेक्चर में प्राइस इलास्टिसिटी के जो टाइप्स होते हैं वो हमने सोचे या समझे. पहला था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसके बाद आया परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, उसके बाद आया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वेयर इट इज इक्वल टू 1, दैट इज द इलास्टिसिटी. उसके बाद आया रिलेटिवली इलास्टिक विच इज मोर देन 1 एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक विच इज लेस देन 1. नाउ ये थे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पर ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसे अगर मैं मेजर करना चाहूँ, बराबर, कि सर इसकी गिनती कैसे करते हैं, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वेल, तो आज हम लोग जो मेथड्स आपके टेक्स्ट बुक में बताए गए हैं, फर्स्ट मेथड बीइंग रेशियो ऑफ परसेंटेज मेथड, एंड देन वी मूव ऑन टू द सेकेंड एंड वी मूव ऑन टू द थर्ड. हाउ डू वी विद द हेल्प ऑफ रेशियो ऑफ परसेंटेज मेथड calculate our elasticity of demand, price elasticity of demand. Ratio method is developed by Professor Marshall. इनका नाम आपने बहुत बार सुना है. According to this method, elasticity of demand is measured, नापा जाता है, by dividing the percentage, not the actual number, but the percentage of that number, change in demand by the percentage change in price. डिवाइडिंग. अच्छा, इसको एरिथमेटिक मेथड भी कहा जाता है, रेशियो, परसेंटेज, एरिथमेटिक मेथड. ओके, एज फार एज द फॉर्मूला इज कंसर्न, इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मैथमेटिकली इसको आप रिप्रेजेंट आफ्टर द डिविजन एंड द मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस. हाउ डू वी अप्लाई दिस फॉर एनी सोल्यूशन एंड फाइंड आउट कि कोई चीज़ की प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है. फॉर दैट देयर इज एन एग्जाम्पल जो मैं गो थ्रू करता हूँ आपके लिए. ओके, लेट मी चेंज माई पोजिशन. ये जो फॉर्मूला मेरे पीछे है
इसका यूज कैसे करें। प्राइस पहले 20 था, अभी 25, सो द चेंज इज 5। क्वांटिटी डिमांडेड पहले 10 kg थी, अभी 9, सो द चेंज इज 1। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया कि आपको कैसे ढूंढना है। आंसर डिपेंड करता है वेदर वो इक्वल टू 0 आता है, वेदर वो मोर देन 1 आता है, या वेदर वो लेस देन 1 आता है। लेट्स चेक इट आउट। एज एंड व्हेन आप सब्सटीट्यूशन करो, सो द चेंज इन क्वांटिटी इज 1 kg अपॉन द ओरिजिनल क्वांटिटी इज 10। द original price is 20 upon the change in price is 5. I repeat myself, the data has been mentioned. वो डेटा का आपको फॉर्मूला में जो सब्सटीट्यूशन करना है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, ओके, सब्सटीट्यूशन कर लीजिए। आपको आता है 0.4 विच इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी is less than 1. आपको it can be 1, it can be more than 1, it can be less than 1. Because it is less than 1, it is relatively inelastic. अगर वो more than 1 होता relatively elastic होता, और अगर वो exactly 1 होता तो हम उसको unitary elastic कहते। So your first method very simple, ratio method, percentage method, या तो arithmetic method. और because the result was रिलेटिवली इन इलास्टिक, दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो मैंने पिछली बार आपको दिया था। कभी कभी थोड़े पॉइंट आउट करने में गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे पीछे डिस्प्ले पे क्या आने वाला है। ओके, ये हुआ फर्स्ट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज द सेकेंड मेथड? इसको कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, खर्चे वाला मेथड। सभी लोग खर्चा करते हैं, जो वो खरीदते हैं उसमें खर्चा हो जाता है। ओके, इन दिस कनेक्शन मार्शल ने क्या कहा है? 3 वेराइटी आपको मिल सकती है। रिलेटिवली इलास्टिक विच इज मोर देन 1, यूनिटरी विच इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 विच इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। नाउ टोटल एक्सपेंडिचर आपको कैसे मिलेगा? कोई भी चीज का प्राइस जो आप खरीदते हो मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर आप जाके 2 या 5 जीन्स खरीदो या 5 साड़ियाँ खरीदो, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है भैया? लोग या घर पे पूछेंगे खर्चा कितना किया आपने पूरा, तो आप बोलोगे देखो 5 चीज़ें खरीदी, एक का प्राइस 500 रुपीज़, तो फिर 5 का प्राइस 5 मल्टीप्लाई बाय 500, 2500, ये आपका है टोटल एक्सपेंडिचर। नाउ इलास्टिसिटी का मेजरमेंट, इसके हेल्प से हम कैसा ढूंढ सकते हैं? एक एग्जाम्पल। ओके, प्राइस इज पी, जो पहले 10 रुपीज़ था फिर 20 हो गया, तो प्राइस हैज इंक्रीज्ड। बी सिचुएशन में फ्रॉम 30 इट हैज बिकम 40, प्राइस और बढ़ गया। एंड सी सिचुएशन, सी कैटेगरी 50 to 60, द प्राइस इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। क्वांटिटी डिमांडेड में आप फर्क देखिए, पहले 6 यूनिट्स सस्ते प्राइस में खरीदे जाते थे, फिर वो 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट factor is the price, second factor is the quantity demanded, multiplication between both gives you the total expenditure। अच्छा, तो इन ए सिचुएशन आपने पहले खर्चे किए 60 रुपीज़, वो बढ़ के हो गया 100। दैट मीन्स ए सिचुएशन इज विच कैटेगरी ऑफ इलास्टिसिटी? अगर आप ऊपर देखो एंड पढ़ो, क्या कहता है? Total expenditure incurred is 60. When the price rises, quantity demanded falls to 5 and total expenditure 100 हो जाता है। पहले 60 रुपीज़ खर्चा किया, अभी 100। In this case, total outlay is greater than the original expenditure. Important. अभी जो खर्चा किया that is more than the original expenditure। इस सिचुएशन को कहा जाता है relatively elastic, because your elasticity is more than 1। as in when आप इसको जो फॉर्मूला है उसमें सब्सटीट्यूट करोगे you will get more than 1। बट अगर आप सिचुएशन बी देखो, then the total is the same, मल्टीप्लीकेशन करके 120, 120। तो ये क्या हुआ कि भैया पहले जो मैंने खर्चा किया और अभी जो खर्चा कर रहा हूँ एट 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स, दैट इज द सेम। इसको आप कहोगे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक।
बट इफ यू लुक एट सी सिचुएशन, ठीक मेरे बगल में, तो आपको देखेगा कि पहले 100 खर्चा किया, बाद में 60, सो अभी खर्चा कम हो रहा है। अगर खर्चा आपका अगला rather compared to the original कम हो रहा है, then your elasticity just behind me is less than 1, which we term as inelastic demand. Relatively, perfectly नहीं, perfectly is either a horizontal line or a vertical line, a horizontal line or a vertical line. जहाँ पे relatively की बात आती है, relatively मतलब करीबन, करीबन खींच सकता है या नहीं खींच सकता, विच इज आइदर मोर देन 1, लेस देन 1 और इन यूनिटरी. सो व्हेन यू आर इन सिचुएशन ए where the changed total outlay is more than the previous original total outlay, that is elasticity of more than 1. Where it is the same, it is elasticity of equal to 1, and where it reduces, it is elasticity of less than 1. ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर का मेथड है. नेक्स्ट इज पॉइंट मेथड या तो जियोमेट्रिक. पहला वाला क्या था, एरिथमेटिक. यहां पे क्या है, जियोमेट्रिक. ओके, यहां पे क्या बताया गया है, पॉइंट इलास्टिसिटी. रेशो मेथड में, टोटल आउटले मेथड में कुछ खामियां हैं. ये किसी भी पॉइंट पे आपको उस पॉइंट की इलास्टिसिटी नहीं बता सकता, इसके लिए पॉइंट मेथड बनाया गया है. किसी भी ग्राफ के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को लेके किसी भी पॉइंट पे आपको कैसे बताया जाए. चलिए जी, ये भी हम लोग ग्राफ की मदद से ही पढ़ते हैं और अकॉर्डिंगली जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है वो समझने की कोशिश करते हैं. देयर आर वेरियस पॉइंट्स. अभी ये वेरियस पॉइंट्स पे देयर इज वाई एक्सिस जिस पे प्राइस लिखा है, देयर इज एक्स एक्सिस जिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखी गई है, वो प्लीज याद रखना. ओके, यहाँ पे लीनियर डिमांड कर्व 1 एंड द सेकेंड इज नॉन लीनियर डिमांड कर्व. लीनियर डिमांड कर्व में मुझे कैसे पता चलेगा इलास्टिसिटी, लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 0, इनफाइनाइट. वेल, देख लेते हैं वन बाय वन. हियर एट पॉइंट P द इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, तो उसको आप कह सकते हो यूनिटरी. व्हेन यू मेक अ चेंज, जहां पे P से P2 तक जाता है, क्वांटिटी में चेंज आता है, सो नाउ द इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. व्हेन देयर इज अनदर चेंज, then the elasticity is at P1 less than 1, and at A point the elasticity is infinite क्योंकि प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आया, and at point B the elasticity is equals to 0 कि प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आई है. प्लीज नोट, जस्ट टू फिनिश अप विद द ग्राफ एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जब ग्राफ बनाओ उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी लोगों को समझ आता है. उसके अंदर क्या कहा गया है, एट पॉइंट P, प्लीज नोट, बिहाइंड मी इज, लेट्स डू वन थिंग, थोड़ा बेहतर रहेगा, स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, इट्स इजी टू व्यू. एट पॉइंट P हाउ इज इट 1, क्योंकि जो PB और PA, PB इज द क्वांटिटी एंड PA इज द प्राइस, सेम है. ओके, बिकॉज इट इज, अगर आप एक ब्लॉक को एज्यूम करो 2 यूनिट्स, सो इट बिकम्स 4/4, PB एंड PA बराबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यू गेट 1. बट अगर आप पॉइंट P1 लो, सो द P1B विच इज 2 एंड द P1A वो आता है 2/6, 0.33. नाउ व्हेन यू से इट इज 0.33, आपका इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. अगर आप P2 की बात करो, एट P2 एट दैट इट इज इसको पॉइंट मेथड कहा गया है, ओके, या जियोमेट्रिक मेथड. सो P2B एंड P2A, यहाँ पे 6 है, वहाँ पे 2, आपको 3 आता है, इट इज मोर देन 1, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक. बट अगर आप पॉइंट A को देखो, पॉइंट A में इट इज इनफाइनाइट क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ओके, क्वांटिटी में इनफाइनाइट चेंज है. एंड अगर आप पॉइंट B पे देखो, प्राइस में चेंज है, क्वांटिटी ढीठ है, इन दैट सिचुएशन इट इज इक्वल टू 0. लीनियर डिमांड कर्व इस तरह आपकी हेल्प करता है. ये
एट एनी गिवन पॉइंट इलास्टिसिटी को, उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को समझने में. नॉन लीनियर डिमांड कर्व, हाउ डज दैट पर्टिकुलर thing help? When demand curve is non-linear, that is convex to the origin. Now by that what do you mean? This is what it is meant by convex to the origin, the shape. Okay, ये जो shape आया है. Okay, we have to draw a tangent AB, that is this, touching the given point of demand curve and extending it to meet y-axis at point A, price, and x-axis at point B. Fine. तो the elasticity of demand, ये कैसे पता चलेगा? Lower segment of the tangent shift, I will shift below a given point upon upper segment of the tangent above a given point. ये थियोरेटिकली ही रखते हैं क्योंकि ये आपको नॉर्मली तो लिखने के लिए ज़रूरत नहीं आएगा. बट इन दिस, अगर आपका ई बी इज इक्वल्स टू ई ए, ई बी इज इक्वल्स टू ई ए इक्वल यूनिटरी, ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, ई बी इफ इट इज ग्रेटर देन ई ए, मोर देन वन, रिलेटिवली इलास्टिक, और अगर ई बी इज लेस देन ई ए, लेस देन वन, रिलेटिवली इनइलास्टिक. सो जहाँ तक आपका क्या कहते हैं पॉइंट मेथड आता है, यू कैन आइदर डू इट विथ लीनियर डिमांड कर्व और नॉन लीनियर डिमांड कर्व. मेरे बगल में जितने भी मैंने ग्राफ्स बनाए हैं, ग्राफ्स एंड द ड्राइंग एंड द रिप्रेजेंटेशन of the situation of that demand analysis, of that supply analysis on the graph, ये बहुत ज़रूरी है. इकोनॉमिक्स में these are few chapters जो इतने पसंदीदा नहीं है. मैंने लास्ट टाइम भी कहा, या तो मैं आज रिपीट कर देता हूँ. बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे रहते हैं कि सर मैंने मेरे मन मर्जी लिख लिया. ओके हाँ, बट ऐसा नहीं कि फिल्म स्टोरी लिखी, इट वॉज अराउंड द सिचुएशन. बट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, ये सारे जो सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस है, यहाँ पे आप अपनी कहानी नहीं बुन सकते. When it is coming to elasticity infinite, elasticity 0, elasticity more than 1, equal to 1, less than 1. This has to be exactly as what has been described with the graph and the explanation on the graph. Please आप प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके. ओके, अगर बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक है या दूर है, प्रैक्टिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी, वेदर वो एंटरटेनमेंट फील्ड में हो, वेदर वो गायक हो, एक्टर हो, वेदर वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, वेदर वो क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, हॉकी प्लेयर हो, टेनिस, टेबल टेनिस, किसी भी तरीके का जिम्नास्टिक्स, किसी भी तरीके का ओलंपिक स्पोर्ट्स, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उनका परफॉर्मेंस कुछ सेकेंड्स का रहता है कभी कभी, उसके लिए प्रैक्टिस करीबन 2-2.5 साल की उनको करनी पड़ती है, काफ़ी महीनों की प्रैक्टिस उनको करनी पड़ती है. चलिए, आपके एग्जामिनेशन के पहले जितना टाइम है, एटलीस्ट आप इतना तो ध्यान दीजिए कि उतना टाइम आप यूटिलाइज करो आपकी प्रैक्टिस के लिए. अभी के लिए इतना ही मैं रखता हूँ, वरना ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. जल्दी ही आपके साथ में मिलूँगा. अगर आप यहाँ पे नए हो, सब्सक्राइब करें, पुराने हो शेयरिंग करें, और अगर कोई भी सजेशन, कंप्लेन, तकरार, कमेंट बॉक्स का उपयोग ज़रूर करें. जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.